ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਏ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਕੈਲਟਨ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। Step second, change the equation into atomic form। उस इक्वेशन ਨੂੰ atomic form ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। Step 3, balance all other elements except hydrogen and oxygen। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਟੈਪ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ to produce ferro oxide and hydrogen gas, right। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਨ ਇਜ਼ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ, ਰਾਈਟ। ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ferro oxide Fe2O3, this compound is known as Fe3O4, this compound is known as ferro oxide and दूसरा प्रोडक्ट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੈਪ 1, ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੈਸਿਸ ਜੋ ਗੈਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੈਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਇਰਨ
प्लस बार बार फिजिकल स्टेट मैंशन करने की जरूरत नहीं हैगी। सो एलीमेंटरी फॉर्म मतलब जिहड़ा आ 2 है इनू अगे ले आना। हुण ये गैस एटॉमिक फॉर्म दे विच चेंज होगी, राइट। आ साडी किहड़ी इक्वेशन है, दिस इज स्केल्टन इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन इन एटॉमिक फॉर्म। थर्ड स्टैप दे विच असीं क्या कि तुसी हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन नूं छड्ड के बाकी दे सारे एलीमेंट बैलेंस करने हैं। इहदे च 3 एलीमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीसरा एलीमेंट है आयरन। तो असीं पहले स्टैप ते किहनूं बैलेंस करांगे, बैलेंस आयरन। सो अगले स्टैप वास्ते जिहड़ी लेटेस्ट इक्वेशन आई है उन्होंने रीराइट करना है, आयरन प्लस वाटर एरो Fe3O4 प्लस 2 हाइड्रोजन, राइट। हुण आयरन नूं बैलेंस करना तो दोनों साइडों ते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड ते आयरन के एटम कंपेयर करो। इधरली साइड ते आयरन के 3 एटम है, इधरली साइड ते 1 एटम है। सो सानू दोनों साइडों ते अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास हर एक एलीमेंट के एटम का नंबर बराबर चाहिए। तो इधर 3 एटम करने वास्ते मैं इनू 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर दूँगी। साढ़े कोल प्रोडक्ट की बनूगा, आ इक्वेशन आ गई लेटेस्ट जिहदे असी आयरन नू बैलेंस किया है। हुण राजे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विचों असी बैलेंस पहले नंबर पर करांगे ऑक्सीजन नू, फिर करांगे हाइड्रोजन नू। स्टैप नंबर 4 बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नू बैलेंस लेटेस्ट जी इक्वेशन आई है उन्होंने उतारो, Fe वाटर प्लस फेरीफेरो ऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन। हुण ऑक्सीजन इधरली साइड ते ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, तो कट जिधर कट है, सो इधर 4 है, इनू 4 बनाने वास्ते असी वाटर नू 4 नाल मल्टीप्लाई कर देते, राइट। हुण साडे कोल ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, आयरन बैलेंस हो गया। लास्ट स्टैप दे विच बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस इनू इदा लिख दो, बैलेंस हाइड्रोजन। हम लास्ट स्टैप च हाइड्रोजन में बैलेंस करनी है। लेटेस्ट इक्वेशन जी आई वो लिखो, आयरन प्लस वाटर एरो Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। हुण असीं किनू बैलेंस करना, हाइड्रोजन नू। हाइड्रोजन साडे कोल इत्थे किन्ने आ, 4 2s are 8, इधर है 2, असी इधरली साइड ते भी 4 नाल मल्टीप्लाई कर दी। तो इधरली साइड ते भी साडे कोल हाइड्रोजन किन्ने हो गए 8, इधर भी किन्ने है 8। लास्ट स्टैप चेंज द इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म। हुण ये स्टैप बड़ा इंटरस्टिंग स्टैप है, जिवें ये इंटरस्टिंग सी उस तरह ये इंटरस्टिंग है। ये एटॉमिक फॉर्म है, जी जिन्ने भी मैं स्टैप लिखे आ हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म दे विच है। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब H2, इस तरह लिखना। मैं किस तरह लिखांगे, लेटेस्ट इक्वेशन उतारो, 3Fe प्लस 4 वाटर एरो Fe3O4, 8 हाइड्रोजन है, राइट। हाइड्रोजन नूं असीं किहड़ी फॉर्म दे विच लिखना, मॉलिक्यूलर नूं। मॉलिक्यूलर मतलब आ जिहड़ा 2 इत्थे लग्गिआ इहनूं इत्थे लिया, राइट। और इत्थे साडे कोल कितना रह जाऊगा 4, ठीक। तो साडे कोल हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी। आयरन किन्ने आ, आयरन 3 है, हाइड्रोजन किन्ने आ 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन किन्ने आ साडे कोल 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन इधरली साइड ते, 3 आयरन है इधरली साइड ते, 4 ऑक्सीजन है इधरली साइड ते, हाइड्रोजन किन्ने आ 8। आप एक बारी कंपेयर कर लिए, आयरन 3 हाइड्रोजन 8 4 ऑक्सीजन। तो दोनों साइडों ते रिएक्टेंट्स के एटम का नंबर बराबर है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस इक्वेशन, राइट। So this is the technique how you can write how you can balance a chemical equation through hit and trial method। एक तुहाडे वास्ते एक होर इक्वेशन जिहड़ी है मैं इहदी बैलेंस कर लैने आपां, सिंपल जी एग्जांपल आपां होर लैने इहदी। सो
ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਮੇ ਰਾਈਟ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ KMnO4 KMnO4 plus HCl hydrochloric acid arrow KCl plus manganese chloride plus water plus chlorine। ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੈਸ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਗਨੀਜ਼ पोटाशियम एंड क्लोरीन। इको स्टैप मैं कोशिश करती हाँ सारिया चीज़ों बैलेंस करने की। KMnO4 प्लस पोटाशियम पर मैगनेट, पोटाशियम क्लोराइड, मैगनीज क्लोराइड, वाटर प्लस Cl। सो इस इक्वेशन के जी बैलेंस मैं पहले नंबर पर किनू करना है, मैगनीज नू बैलेंस करते हैं। मैगनीज के इधर एक एटम है, इधरली साइड पे भी एक एटम है, मैगनीज बैलेंस है। पोटाशियम एक एटम, इधरली साइड पे भी पोटाशियम का एक एटम है, पोटाशियम बैलेंस है जी। दैन वी हैव टू बैलेंस द क्लोरीन। क्लोरीन राजे क्लोरीन बैलेंस नहीं हैगी। क्लोरीन दे इधरली साइड पे कितने एटम है साढ़े कोल 1 और इधरली साइड पे क्लोरीन 4 क्लोरीन दे एटम है, राइट। सो पहले नंबर पर आप क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करिए। हाउ यू कैन बैलेंस इट? 1 टोटल नंबर इज 4, राइट। सो क्लोरीन बैलेंस की हुण आप बैलेंस कर लिए बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो बैलेंस करना है तो लेटेस्ट इक्वेशन KMnO4 प्लस 4 HCl एरो KCl सो इन दिस स्टैप इस स्टैप दे विच असीं किनू बैलेंस करना है, असी बैलेंस करना जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर साढ़े कोल 4 है, इधर साढ़े कोल ऑक्सीजन 1 है, तो असी इधरली साइड ते ऑक्सीजन नू बैलेंस करने वास्ते 4 नाल मल्टीप्लाई कर दिए। नैक्सट स्टैप इज बैलेंस हाइड्रोजन। बैलेंस हाइड्रोजन लेटेस्ट इक्वेशन असी हुण इत्थे बैलेंस करना जी। वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन साढ़े कोल हाइड्रोजन के इधरली साइड पे कितने एटम है? 4 और इधरली साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम है साढ़े कोल? 4:2 to 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए, इस करके इनू फिर तो 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी अगेन 8। नाउ इन द लास्ट बैलेंस क्लोरीन। सो हो सकता क्लोरीन नू तुसी जे पहला बैलेंस कर लेंदे तो इक्वेशन ईजी रह जानी सी अपने कोल। बैलेंस क्लोरीन सो क्लोरीन नू बैलेंस करना है
तो क्लोरीन ਨੂੰ बैलेंस करने वास्ते असी साढ़े कोल 8 क्लोरीन है, इधर साढ़े कोल 2 + 1 3 राइट। हुण साढ़े कोल 8 दे विचों 3 क्लोरीन इत्थे बैलेंस हो रही, लेकिन साढ़े कोल 8 क्लोरीन बैलेंस करनी है, तो ये अगे कोफिशिएंट की लगावांगे असी 5। सो क्लोरीन के अगे कोफिशिएंट की लगावांगे 5। हुण साढ़े कोल टोटल क्लोरीन कितनी हो गई 8। 6 स्टैप राइट द इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म। इक्वेशन ਨੂੰ मॉलिक्यूलर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ मतलब Cl2 लिखना है। Cl2 बनाने वास्ते सानू सारी की सारी इक्वेशन 2 दे नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा राइट। सो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे ए 2 आजू, इत्थे साडे कोल 8 की बजाय कितना आजूगा 16, दैन 2 KCl, दैन 2 मैगनीज क्लोराइड, दैन 8 molecule of water, and in the last you may write here 5 molecules of chlorine gas. So this is the last result of this equation. So here 2 KMnO4, 16 HCl, 2 KCl, 2 manganese dichloride, then 8 molecule of water and 5 of chlorine. So this is the balance equation जिहदे च पोटाशियम 2 है, मैगनीज साढ़े कोल 2 है, ऑक्सीजन साढ़े कोल 8 है, हाइड्रोजन साढ़े कोल 16 है, क्लोरीन साढ़े कोल 16 है जी। और इधरली साइड पे साढ़े कोल पोटाशियम 2, मैगनीज 2, और साढ़े कोल हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 8, एंड दैन क्लोरीन लास्ट दे विच आपां कढ लैने आ इत्थे 10 + 4 14 15 16। सो क्लोरीन भी किन्ने है साढ़े कोल 16 क्लोरीन। कंपेयर कर लिए बराबर 8 ऑक्सीजन, 16 हाइड्रोजन and 16 chlorine. So this is the result of this equation. So this is a balanced chemical equation by hit and trial method. So एक equation ਆਪਾਂ ਹੋਰ थोड़ी जी ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਆ नॉर्मली स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाते ਇਹਨੂੰ इक्वेशन ਨੂੰ। सो एक स्टैप का ख्याल रखना है, जदों कभी भी एलीमेंटरी गैस जी ऑड नंबर च आवे, ऑड नंबर मतलब मान लो मेरे को हाइड्रोजन है, ये अगे कोफिशिएंट 5 आ गया और असी इनू मॉलिक्यूलर फॉर्म दे विच चेंज करना है, तो इनू कल्ले एलीमेंट नू 2 नाल मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरी दी पूरी इक्वेशन नू 2 दे नाल इनू ईवन नंबर बनाने वास्ते उस ईवन नंबर नाल मल्टीप्लाई करना पैना। जे 2 इत्थे लगाना तो 2 नाल मल्टीप्लाई करना पैना। जे मान लो मेरे को 5 क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन नू मॉलिक्यूलर फॉर्म दे विच जदों मैं लिखना तो सारी दी सारी इक्वेशन नू मैनू 2 नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा। जे मान लो मेरे को किते भी नाइट्रोजन है, चाहे वो प्रोडक्ट वाली साइड ते है चाहे रिएक्टेंट वाली साइड ते है, जदों इक्वेशन नू बैलेंस करना तो उन्होंने हमेशा एटॉमिक फॉर्म दे विच सानू लिखना पैना ही है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक इक्वेशन है N2 + H2 एरो 2 मोल ऑफ अमोनीया राइट। इस इक्वेशन नू असी मॉलिक्यूलर फॉर्म दे विच लिखना, हाउ यू विल राइट इट। ठीक है, इक्वेशन नू किस तरीके दे नाल असी राइट करांगे। सो हाउ टू राइट इट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। बैलेंस नहीं करना पहला, बैलेंस पहला दिस इज़ द स्केलेटन इक्वेशन राइट। हुण इनू मॉलिक्यूलर फॉर्म दे विच एटॉमिक फॉर्म दे विच लिखना। जे कोई एलीमेंटरी गैस है तो उन्होंने एटम की फॉर्म दे विच चेंज कर दो। ये वैसे सादा जिहा स्टैप है, दिस इज़ एटॉमिक फॉर्म। चाहे
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੈਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਰਾਈਟ। N plus H एरो NH3, राइट। नाइट्रोजन दोनों साइडों पे 1-1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। दैन इन द लास्ट बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को असी बैलेंस करना हूँ N plus H एरो NH3, इधर H3 है, इधर इनू 3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। पंजवां स्टैप, राइट द इक्वेशन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। हुण इनू इक्वेशन नू मॉलिक्यूलर फॉर्म दे विच लैके आने वास्ते सानू इस सारी दी सारी, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब असी इनू H2 फॉर्म च लिखना है। ऑड नंबर नू जदों इवन नंबर च चेंज करना तो सानू सारी दी सारी इक्वेशन नू 2 नाल मल्टीप्लाई करना पैना। तो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे, इट विल बी नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एरो 2 मोल ऑफ